हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स का यूनिट स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। लेट्स बिगिन। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है। व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी इज़ द study of transmission of characters from parents to offsprings or from one generation to the next. The characters that are passed from one generation to the other are called hereditary characters. ठीक है. Variations may be defined as the differences in characteristics shown by the individuals of a species and also by the offsprings or siblings of the same parents. Now, what is gene? Gene is the inherited factor that determines the biological character of an organism. A pair of contrasting characters is called allelomorph or allele. Dominant allele is one of the factors of an allelic pair which can express itself whether present in homozygous or heterozygous state. For example, capital T is for tallness in pea plant, then capital R is for round seed in pea plant. ठीक है. Then a recessive allele. Recessive allele is the factor of an allele pair which is unable to express its effect in the presence of its contrasting factor in a heterozygote state. ठीक है, कि अगर इसका मतलब कि वहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर भी है तब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा रिसेसिव वाला. ठीक है ना. जैसे स्मॉल टी, ये क्या है? रिसेसिव एलील है. ये ड्वार्फ के लिए होती है पी प्लांट में. ठीक है. कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो स्मॉल है ना, स्मॉल टी, ये ड्वार्फ के लिए, ये रिसेसिव एलील है. नेक्स्ट इज इन होमोजाइगस कंडीशंस organisms have two similar genes or alleles for a particular character in a homologous pair of chromosomes. For example, capital TT or small tt. ठीक है, this is homozygous condition. Then organisms containing two different alleles are an individual containing both dominant and recessive genes of an allelic pair. For example, capital T as well as small t. So it is said to be in heterozygous condition. When only one allelic pair is considered in crossbreeding, it is called monohybrid cross. When two allelic pairs are used for crossing, it is called dihybrid cross. ठीक है ना. The reciprocal crosses involve two crosses concerning the same characteristics but with reversed sexes. A cross of F1 hybrid with either of the two parents is known as backcross. ठीक है. Crossing of F1 individual having dominant phenotype with its homozygous recessive parent is called test cross. ठीक है. The test cross is used to determine whether the individuals exhibiting dominant characters are homozygous or heterozygous. ठीक है. Now Mendelism. What is Mendelism? ठीक है. Mendel, जो Gregor John Mendel. ठीक है ना. Mendel had conducted several hybridization experiments on garden pea, that is Pisum sativum. The number of characters studied by Mendel in pea plant were 7 characters. ठीक है. The number of chromosomes in Pisum sativum is 14, which is in diploid condition 14. ठीक है. Mendel restricted his experiments to one or few pairs of contrasting traits in each experiment. देन मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. उसके क्या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है? ठीक है ना, जिसमें आगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है ना. ये देखते हैं. फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है. लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट ओनली वन फैक्टर expresses itself in F1 generation. In a hybrid where both the contrasting alleles are present, only one factor or allele called dominant is able to express its effect, while the other factor called recessive remains suppressed in F1 generation. ठीक है. Then F2 generation expresses both the dominant and the hidden recessive factors in the ratio of 3:1 in the monohybrid cross. ठीक है. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया. Then law of segregation. Principle of segregation states that when a pair of contrasting factors are brought together in a hybrid, these factors do not blend or mix up but simply associate themselves and remain together and separate again at the time of gamete formation. This law is also known as the law of purity of gametes. कौन सा?
ये, ठीक है। आल्सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बिकॉज ईच गैमेट इज प्योर इन इटसेल्फ, ठीक है। दैट इज हैविंग आइदर कैपिटल टी मीन्स जीन फॉर टॉलनेस और स्मॉल टी दैट इज जीन फॉर ड्वार्फनेस, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। Third is principle of independent assortment. Principle of independent assortment states that the genes of different characters located in different pairs of chromosomes are independent of one another in their segregation during gamete formation. Mendelian recombinations were mainly due to independent assortment. This principle was proved using dihybrid cross and phenotypic ratio is 9:3:3:1, ठीक है ना। तो ये हैं करेक्टर स्टडीड बाय मेंडल। इसमें जो मेंडल ने 7 करेक्टर्स ये लिए थे, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है ना। तो उसमें डोमिनेंट करेक्टर्स ये वाले थे और ड्वार्फ रिसेसिव वाले ये थे, ठीक है। जब प्लांट की हाइट ली तो टॉल वाला जो है डोमिनेंट था और ड्वार्फ स्मॉल टी वाला रिसेसिव था। फ्लावर पोजीशन में एक्सिलरी वाला जो था ये डोमिनेंट था और टर्मिनल वाला ये रिसेसिव था। ऐसे जो डोमिनेंट वाले ये कैपिटल वर्ड से लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो जो रिसेसिव वाला है उसके स्मॉल से, ठीक है ना। पॉड कलर जो है ये ग्रीन था, ठीक है, जिसको कैपिटल जी या कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिसेसिव कलर जो था ये येलो था, स्मॉल जी या स्मॉल वाई से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते। देन पॉड शेप जो थी ये फुल, जो डोमिनेंट था वो फुल और इन्फ्लेटेड वाला था जिसको आई या सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिसेसिव वाला कंस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, स्मॉल आई या स्मॉल सी से रिप्रेजेंट। फ्लावर कलर जो है ये वायलेट था, ठीक है, इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिसेसिव वाला वाइट इन दो सिंबल से। सीड शेप जो है राउंड थी, ये कैपिटल आर या कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिसेसिव वाला ये रिंकल था, ठीक है ना। देन सीड कलर जो है वो डोमिनेंट वाला था येलो और रिसेसिव वाला था ग्रीन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम देखते हैं जीन इंटरेक्शंस, ठीक है, जीन इंटरेक्शंस। Gene interaction is the modification of normal phenotypic expression of a gene due to either of its alleles or other non-allelic genes, ठीक है। जीन इंट्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक, ठीक है। फर्स्ट इज इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। इंट्राजेनिक interaction, two alleles of a gene which are present on the same gene locus on the two homologous chromosomes react to produce modified phenotype. It can be seen in the following, ठीक है। हाँ, तो ये इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन जो है ये पाई जाती है किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, लीथल जीन्स, इनमें पाई जाती है, ठीक है ना। पहला हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये ठीक है, ये इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन देख रहे हैं। हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है ना। It is the phenomena where dominant allele does not completely express itself. This was first studied in flower color of Mirabilis jalapa or 4 o'clock plant. The phenotypic as well as the genotypic monohybrid ratio in F2 generation in incomplete dominance is 1:2:1, ठीक है। ये होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में रेशो, ठीक है। इसका मतलब कि 1 जो है ये प्योर डोमिनेंट है, 2 ये जो 2 हैं ये हैं हाइब्रिड, और जो 1 है ये प्योर रिसेसिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिंक फ्लावर्स F1 के जो थे आर ऑब्टेन्ड व्हेन रेड एंड वाइट फ्लावर्स आर क्रॉस, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, पिंक फ्लावर आ गए थे मिराबिलिस jalapa के, रेड और वाइट को जब क्रॉस करा, ठीक है। हाँ, तो दूसरी इंटरजेनिक इंट्रैक्शन में आ गया कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस, हाँ, और ये रेशियो याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस की 1:2:1, ठीक है। देन कोडोमिनेंस इज द phenomena of two alleles lacking a dominant recessive relationship where both of them express themselves together and equally in the organism, ठीक है। दोनों जो हैं एक्सप्रेस करती हैं कोडोमिनेंस में, ठीक है। The codominant alleles are able to express themselves independently when present alone, ठीक है। हाँ, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं, तो इसकी जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 1:2:1, ठीक है। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ कोडोमिनेंस इज 1:2:1, ठीक है। जीनोटिपिक नहीं, फिनोटिपिक की बात कर।
हाँ, देन थर्ड इज मल्टीपल एलील्स, ठीक है, ये भी इंट्राजेनिक में आता है, मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट, ठीक है ना। मल्टीपल एलील्स, these alleles are multiple forms, means more than two alternatives. हाँ, these are multiple forms of a Mendelian factor or gene which occur on the same gene locus distributed in different organisms in the gene pool, with an organism carrying only two alleles and gamete only one allele, ठीक है। with an organism carrying only two alleles and gamete only one allele, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाँ, इसमें जो है मल्टीपल एलील्स का कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ कोडोमिनेंट एंड मल्टीपल एलील्स, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप ये कोडोमिनेंट और मल्टीपल एलील्स दोनों की एग्जांपल है, ठीक, कोडोमिनेंस की भी और मल्टीपल एलील्स की भी, ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। in human beings the blood groups are determined by two types of antigens present in the surface coating of red blood cells, ठीक है, A and B. In human population, three different alleles for ABO blood group systems are found, that is IA, IB and IO. IO को स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। IA and IB are mutant alleles and are dominant over IO or small I, which is a wild allele, ठीक है। Then IA and IB are responsible for A and B antigens, which are glycoproteins, ठीक है, while IO or small I does not produce any of these A or B antigens, ठीक है। हाँ, a person is having only two of these three alleles and blood type can be determined by their antigen types, ठीक है। six genotype combinations are possible with these three alleles, ठीक है। तो ये भी हो गया मल्टीपल एलील्स का कंसेप्ट, ठीक है ना। ये सारे इंट्राजेनिक पार्ट है। नेक्स्ट इंट्राजेनिक की एग्जांपल आ गई लीथल जीन्स, ठीक है, लीथल जीन्स, ठीक है ना। दे आर द जीन्स विच कंट्रोल सम वाइटल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड काज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आइदर इन होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है, डेथ काज करते हैं। विद द डेथ ऑफ द होमोजाइगस लीथल द मोनोहाइब्रिड रेशियो कम्स टू 2:1, तो मोनोहाइब्रिड रेशियो इसमें हो जाती है 2:1 विद द डेथ ऑफ होमोजाइगस लीथल, ठीक है। हाँ, तो ये हमने इन इंटरजेनिक वाले ये पढ़ ली, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड लीथल जीन्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंटरजेनिक इंटरेक्शन, ठीक है ना, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। हाँ, modification of effect of a gene under the influence of non-allelic gene, that is a gene at different locus, ठीक है ना। हाँ, it is termed as intergenic interaction. It may be expressed in following forms. intergenic interaction की पहली एग्जांपल आ गई complementary genes, ठीक है ना। ये क्या होता है कि इफ़ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट अलोन, ठीक है, बट इंटरेक्ट टू फॉर्म अ न्यू ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। या अगर दो जीन्स डिफरेंट लोकाई पे हैं वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी जब वो अकेली हों, ठीक है, लेकिन जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो नया ट्रेट बनाएंगी जब मतलब कि इकट्ठी हों, ठीक है ना। तो ऐसी को हम कम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंटरजेनिक इंटरेक्शन इज सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है, कंप्लीमेंट्री पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री जीन्स आर टू नॉन एलीलिक जीन्स इन विच वन टाइप ऑफ जीन प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट वेदर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट, एंड सेकंड विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट, यूजुअली फॉर्मिंग अ न्यू ट्रेट, सो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री जीन्स। नेक्स्ट इज एपिस्टैसिस, ठीक है, ये भी इंटरजेनिक इंटरेक्शन है। एपिस्टैसिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स present at two separate loci in which one gene suppresses or masks the expression of the other gene. A dominant epistatic gene suppresses the expression of another gene at different locus regardless of allele condition, that is dominant or recessive. A recessive epistatic gene suppresses the expression of non-allelic gene only when the former is in homozygous recessive state, ठीक है। dominant allele at one locus and recessive allele at another locus give rise to the same effect, ठीक है। हाँ, तो ये इस टेबल में
हाँ, ये कुछ दिए गए हैं समरी ऑफ एपिस्टैटिक रेशियो। पहले हम ये दो पढ़ लेते हैं, डुप्लीकेट जीन्स और प्लियोट्रॉपिक का, ठीक है ना। हाँ, डुप्लीकेट जीन्स ये क्या होती हैं, ठीक है, ये भी इंटरजेनिक इंटरेक्शन है, ठीक है, डुप्लीकेट जीन्स। व्हेन टू पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल एलील्स आर प्रेजेंट, आइदर ऑफ विच इज एबल टू प्रोड्यूस द कैरेक्टर इन क्वेश्चन, दीज आर सेड टू बी डुप्लीकेट फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लियोट्रॉपिक जीन्स। Pleiotropic genes. When a gene affects many aspects of phenotype or controls several phenotypes, it is said to be pleiotropic gene, and this phenomenon is called pleiotropy, ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा टेबल देख लेते हैं कि समरी ऑफ एपिस्टैटिक रेशियोज, ठीक है। क्लासिकल रेशियो क्या आ गया, 9:3:3:1, ये क्लासिकल रेशियो है, ठीक है। अच्छा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो तब रेशो बन जाएगी 12:3:1। रिसेसिव एपिस्टेसिस में रेशो बन जाएगी 9:3:4, ठीक है। ये मिला के सारी 16 ही होते हैं, जैसे 9 3 हो गए 12, 12 3 हो गए 15, 1 16, ठीक है। जैसे ये देख लो 13 3 16, ठीक है। बस ये रेशो चेंज है, ठीक है। अच्छा, रिसेसिव एपिस्टेसिस में 9:3:4, डुप्लीकेट जीन्स विद क्युमुलेटिव इफेक्ट इसके 9:6:1, डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स का 15:1, डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स का 9:7, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन का 13:3। ये इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं रेशो, ठीक है। जो क्लासिकल एक रेशो होती है वो होती है 9:3:1, डोमिनेंट एपिस्टेसिस वाली 12:3:1, रिसेसिव एपिस्टेसिस 9:3:4, डुप्लीकेट जीन्स विद क्युमुलेटिव इफेक्ट 9:6:1, डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स 15:1, डुप्लीकेट रिसेसिव जीन 9:7, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंटरेक्शन 13:3। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज। नेक्स्ट अब हमने देखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। हाँ, वाल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवेरी इन 1902 में पॉस्टुलेट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये इन दोनों ने दी थी, वाल्टर सूटन और थियोडोर बोवेरी ने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, नंबर 1 क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, नंबर 1 के bridge between one generation and the next is through sperm and ovum. The two must carry all the hereditary characters. Both the sperm and egg contribute equally in the heredity of the offspring, ठीक है, नंबर 1 है ये पॉइंट। देन सेकंड पॉइंट इसका ये है इस थ्योरी का कि न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, देयरफॉर क्रोमोसोम्स मस्ट कैरी द हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है। Each chromosome or chromosome pair has a definite role in the development of an individual, ठीक है। नंबर तीसरा पॉइंट है इस थ्योरी का कि द क्रोमोसोम्स रिटेन देयर नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द टू नाइदर गेट लॉस्ट नॉर मिक्सड अप, दे बिहेव एज यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज both chromosomes as well as genes occur in pairs in the somatic or diploid cells. A gamete contains only one chromosome of a type and only one of the two alleles of a trait, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज, हाँ अब नेक्स्ट तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं लिंकेज का, ठीक है ना। लिंकेज क्या होता है, ठीक है। Linkage is the phenomenon of certain genes staying together and their inheritance from generation to generation without any change or separation due to their presence on the same chromosome, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंकेज, ठीक है। T.H. मॉर्गन इन 1910 में प्रूव्ड एंड डिफाइंड लिंकेज ऑन द बेसिस ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रासोफिला मिलानोगैस्टर पे एक्सपेरिमेंट करा, इस जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। उसके बेसिस पे T.H. मॉर्गन ने प्रूव करा और डिफाइन करा लिंकेज को, ठीक है ना। देन जीन्स अरेंज इन अ लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम, जीन आर इस लिंकेज में, ठीक है, जीन्स आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन ऑन द क्रोमोसोम। Some genes are situated in close proximity, are always inherited together, that is they become linked. Strength of the linkage between two genes is inversely proportional to the distance between the two. Inversely proportional, ठीक है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है स्ट्रेंथ कम होगी, डिस्टेंस कम है स्ट्रेंथ ज़्यादा।
हाँ, ऑल दोज जीन्स विच आर लोकेटेड इन द सिंगल क्रोमोसोम कंस्टिट्यूट अ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन अ स्पीसीज करस्पॉन्ड्स टू इट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कि कितने लिंकेज ग्रुप्स हैं किसी स्पीसीज में, वो करस्पॉन्ड करता है उसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। 23 लिंकेज ग्रुप्स इन मैन, तो इंसानों में कितने लिंकेज ग्रुप हैं? 23। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, कि जितने उसमें लिंकेज ग्रुप होंगे तो दैट मीन्स उसका हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम नंबर भी उतना होगा, ठीक है। तो इंसान में जो है 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, इसलिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी। नो, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज, ठीक है। पहला आ गया कंप्लीट लिंकेज, देन उसके बाद इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। कंप्लीट लिंकेज का देखते हैं। हाँ, कंप्लीट लिंकेज, हाँ, complete linkage is a linkage or grouping of genes on the chromosome which is not altered and is inherited as such from generation to generation without any crossover. It is rare but has been reported in certain cases like male Drosophila, ठीक है, उनमें ये पाया गया है complete linkage, ठीक है। then incomplete linkage, ठीक है। this incomplete linkage phenomenon, ठीक है, it is an phenomenon of an occasional crossing over phenomenon of an occasional crossing over between two homologous chromosomes so that one or more alleles present in a linkage group are replaced by other alleles, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज होता है, और ये इनकम्प्लीट लिंकेज जो है इट प्रोड्यूसेस बोथ पेरेंटल एंड रिकम्बिनेंट इंडिविजुअल्स। द परसेंटेज ऑफ ईच पेरेंटल टाइप इज मोर देन 25%, while that of each recombinant type is less than 25%. That is, parental types are more than 50% of the population, while recombinant types are less than 50%. नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर इज रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू सिनेप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। दिस क्रॉसिंग ओवर इज द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स of genetic material between non-sister chromatids of two homologous chromosomes so as to produce recombinations of genes, ठीक है। The non-sister chromatids in which exchange of segments has occurred are called recombinants or crossovers, ठीक है। This crossing over brings new combination of genes which are different from parents, thus introduces variations, ठीक है। The variations are helpful in struggle for existence and adaptability to changes in environment, ठीक है। These crossing over are useful recombinations combinations. These are picked up by breeders for development of improved varieties. The frequency of crossing over is used for building linkage maps or chromosome maps, ठीक है। हाँ, the frequency of crossing over is used for building linkage maps or chromosome maps, ठीक है, उसके लिए यूज होती है क्रॉसिंग ओवर। देन नेक्स्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द मेथड बाय विच द डिस्टेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इज एस्टैब्लिश्ड इन अ स्पीसीज, ठीक है। हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन वो मेथड होता है बाय विच द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इज एस्टैब्लिश्ड इन स्पीशीज, के मेल कौन है फीमेल कौन है, ठीक है ना। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड से ये डिस्टिंक्शन करी जाती है किसी स्पीशीज में, ठीक है, मेल कौन है फीमेल कौन है, ठीक है। हाँ, तो इसी को सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। हाँ, देयर आर 5 मेन जेनेटिक मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, 5 मैकेनिज्म हैं 5 जेनेटिक मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन के, ठीक है। हाँ, XY मेथड, ठीक है, XO मेथड, ZW मेथड, ZO मेथड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, ठीक है। पहला देखते हैं XY मेथड, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें जो XX, ठीक है, ये जो प्लस वाला ये होती है फीमेल और ये होता है मेल, ठीक है ना। कि XY मेथड में XX जो है ये फीमेल है, XY मेल है, ठीक है, ये साइन मेल का है। जैसे मैमल्स, सम स्पीसीज लाइक इंसेक्ट लाइक ड्रोसोफिला, ठीक है, तो उनमें ये XY मेथड होता है। जैसे इंसानों में मर्द का होता है XY और औरत का XS, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं एक्सो मेथड। एक्सो मेथड में जो है XX होता है फीमेल का और XO होता है मेल का, ठीक है ना।
जैसे राउंड वार्म हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, उनमें ये एक्सो मेथड होता है, ठीक है। देन ZW मेथड, ठीक है। ZW मेथड में क्या होता है कि जो ZW है ये फीमेल के लिए है और ZZ जो है ये मेल के लिए। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस में ZW मेथड होता है। देन नंबर 4 पे है ZO मेथड। जैसे ऊपर XO मेथड था ना, अब ZO मेथड। ZO मेथड में जो ZO है ये फीमेल के लिए और ZZ जो है ये मेल के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे मोथ्स, बटरफ्लाई में ZO मेथड। देन 5th वन इज हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ मेल एंड अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ फीमेल, जैसे हनी बी में होती है, ठीक है ना। तो ये हनी बी में हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड होता है कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो मेल बन जाता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फीमेल बन जाती है हनी बी में, ठीक है, मक्खियारी में, शहद की मक्खी। नेक्स्ट एक कंसेप्ट देखेंगे दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। Sex linked inheritance is the transmission of characters and their determining genes along with the sex determining genes present on the sex chromosomes which are inherited together from one generation to the next. Sex linked traits are more apparent in males than in females. Females generally function as carriers of sex linked disorders because recessive genes can express themselves in females only in the homozygous state, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हीमोफीलिया एटसेट्रा, ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आते हैं। देन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वेयर अ पेरेंट passes the traits to the grandchild of the same sex through offspring of this opposite sex, that is father passes the traits to grandson through his daughter, हाँ ठीक है, that is diagonic, हाँ, while the mother transfer traits to her granddaughter through her son, that is diandric, ठीक है। तो ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, ये उसी की एक टाइप है। नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या होती हैं? म्यूटेशन इज द सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ठीक है, सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूस वेरिएशन विच अपीयर्स इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू परमानेंट चेंजेस इन देयर जीनोटाइप्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें टाइप्स होती हैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, पहले हम देखते हैं इसके क्रोमोजोमल म्यूटेशन का, फिर उसके बाद जीन म्यूटेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। पहले है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। इसमें आ गया डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। पहला है डिलीशन। डिलीशन इज द लॉस ऑफ अ सेगमेंट और पार्ट फ्रॉम वन और other end of a chromosome means terminal or within the chromosome means intercalary followed by reunion of terminal segments, ठीक है, ये हो गया डिलीशन। देन डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सेम ब्लॉक ऑफ जीन मोर देन वंस इन अ हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डुप्लीकेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन इज अ काइंड ऑफ इंटरक्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट इन विच देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये होता है ट्रांसलोकेशन। नंबर 4 इज इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम ब्रेक्स एट 2 पॉइंट्स, द ब्रोकन पीस रोटेट्स थ्रू 180 डिग्री एंड रीयूनाइट्स इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। व्हेन सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द इन्वर्टेड सेगमेंट इट इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक, अदरवाइज कॉल्ड पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। नंबर 5th वन इज यूप्लॉइडी, EUPLOIDY, यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी में क्या होता है कि हाँ, एन ऑर्गेनिज्म आइदर इन यूप्लॉइडी एन ऑर्गेनिज्म आइदर लूसेस अ कंप्लीट सेट और एक्वायर्स वन और मोर एडिशनल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ओवर एंड अबव द 2 सेट्स ऑफ डिप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, मोनोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी की 2 टाइप्स होती हैं, एक मोनोप्लॉइडी दूसरी पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। नंबर 6th वन इज एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। नंबर 6th वन इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि एडिशन और लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स टू एंड फ्रॉम कंप्लीट डिप्लॉइड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ 4 टाइप्स, दैट इज ट्राइसोमी जिसमें 2n+1 होता है, देन टेट्रासोमी जिसमें 2n+2 होता है, देन मोनोसोमी 2n-1, नलीसोमी 2n-2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्राइसोमी 2n+2, टेट्रासोमी 2n+2, ठीक है। ट्राइसोमी और टेट्रासोमी में मतलब कि +1 और +2 ऐड होता है, ऐड वाला, ठीक है। मोनोसोमी में और नलीसोमी में माइनस होता है, ठीक है। मोनोसोमी में -1
नलिसोमी में -2, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की टाइप होगी। आप पढ़ते हैं जीन म्यूटेशंस, ठीक है ना। जीन म्यूटेशंस में अकर नेचुरली आर ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंटरनल रीजंस, ठीक है। दीज आर टर्म्ड एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशंस आर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस, ठीक है। हाँ, अदर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स आर केमिकल्स, दे आर नोन एज इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, ठीक है। जो खुद होती हैं इंटरनल रीजन से उनको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, जो एक्सटर्नल फैक्टर या केमिकल से होती हैं उनको इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, ठीक है। देन म्यूटेशंस विच इन्वॉल्व्स चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन फ्रॉम वाइल्ड टू न्यू टाइप इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन एंड म्यूटेटेड जीन टू इट्स वाइल्ड फॉर्म इज रिवर्स आर बैकवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। अगर म्यूटेटेड जीन वाइल्ड टाइप में चली जाए रिवर्स या बैकवर्ड म्यूटेशन बोलते हैं, अगर न्यू टाइप बने तब फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। ये जीन म्यूटेशंस में आती है। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है ना। पेडिग्री एनालिसिस, हाँ, तो क्या होता है पेडिग्री? पेडिग्री इज अ चार्ट शोइंग अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन ट्रेड्स फॉर 2 or more ancestral generations of human being or domesticated animal in the form of a diagram of family tree, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पेडिग्री, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस इज यूजफुल इन मैनी वेज, लाइक इट हेल्प्स टू फिल अप द पॉसिबल जीनोटाइप्स बाय नोइंग द फिनोटाइप्स ओनली। It helps to study the pattern of inheritance of a dominant or recessive trait. The possible genetic makeup of a person for a trait can also be known with the help of pedigree, ठीक है। तो पेडिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम पूरा एंसेस्टर रिकॉर्ड देखते हैं उसका, ठीक है ना। कोई डिजीज़ वगैरह होती है जेनेटिक, उनकी भी जो है पेडिग्री देखी जाती है कि क्या पेरेंट्स वगैरह में थी नहीं है, वहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस होती है। नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं कि जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं ये, मतलब क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज़, ये सारी जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जेनेटिक वाली, ठीक है ना। फर्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, हाँ। Color blindness is a sex-linked recessive disorder due to defect in either red or green cone of eye, resulting in failure to discriminate between red and green color, ठीक है। This effect due to mutation in certain genes present in the X chromosome, ठीक है ना। देन हाँ, तो X क्रोमोसोम का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर डिजीज, ठीक है, इसको ब्लीडर डिजीज भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हीमोफीलिया आल्सो नोन एज ब्लीडर डिजीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉन ओटो 1803, ठीक है। दिस हीमोफीलिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। हीमोफीलिया क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं तब अगर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की डेफिशिएंसी से हो, ठीक है, तब हीमोफीलिया या क्रिसमस डिजीज, या फिर आर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन की वजह से, ठीक है। अगर एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन की डेफिशिएंसी से हो तब इसको बोलेंगे हीमोफीलिया ए, हाँ। ड्यूरिंग विच द एक्सपोज ब्लड डज नॉट क्लॉट, ठीक है, एक्सपोज ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। हीमोफीलिया अपीयर्स ओनली इन ह्यूमन मेल विच कैन बी ट्रांसफर टू देयर ग्रैंडसन थ्रू हिज कैरियर डाटा, ठीक है। तो मेल में ही पाई जाती है ज़्यादातर, तो बहुत रेयर केसेस में फीमेल में पाई जाए, तो मेल में पाई जाती है तो ग्रैंडसन में जो है ट्रांसफ़र होती है थ्रू कैरियर डाटा। ऐसा नहीं है कि फीमेल में पाई नहीं जाती, बट बहुत रेयर केसेस में। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव एलील कोडिंग फॉर बीटा ग्लोबिन, ठीक है, ये पेप्टाइड होती है, हाँ। इट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HbA हीमोग्लोबिन ए से, ठीक है ना, इनटू HbS जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाता है, इन विच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट 6th पोजीशन ऑफ ईच ऑफ
टू बीटा चेन्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन को जो बीटा जीन्स होती है ना, हर एक बीटा जीन में 6th पोजीशन पे जो है ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलान आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो HbA से HbS बन जाएगा। देन द सब्सटीट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट्स ड्यू टू अ सिंगल base substitution at the 6 codon of the beta globin gene from GAG से GAG से GUG कोड हो जाता है, ठीक है, जो जेनेटिक कोड होता है ना, हाँ, GAG से GUG हो जाता है। और हाँ, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेलान एट 6th पोजीशन, ठीक है, बीटा जीन्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सिकल सेल एनीमिया इज अ ब्लड डिजीज वेयर द रेड ब्लड सेल्स बिकम सिकल शेप्ड एज कम्पेयर टू नॉर्मल वन, ठीक है। सिकल शेप जो दाती जैसे हो जाते हैं, ठीक है, वो जो घास काटने वाली नहीं दाती होती, उससे ऐसे हो जाते हैं आरबी से। हाँ, नेक्स्ट डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है ना। इट अकर्स ड्यू टू फिनाइल कीटोन्यूरिया अकर्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानाइन hydroxylase enzyme in liver which is essential for the conversion of phenylalanine to tyrosine, ठीक है। फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि लीवर में होता है, ठीक है ना। तो ये एंजाइम एब्सेंस होने की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानाइन इज अकमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा टायरोसिन में, इसलिए फिनाइल एलानाइन इकट्ठा हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसे, फिनाइल पायरुविक एसिड में बन जाएगा और दूसरे डेरिवेटिव्स इंस्टेड ऑफ टायरोसिन, ठीक है। हाँ, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सेवरल मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होता है हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, ठीक है। एक्जिमा हो जाता है, मतलब इची स्किन, एक्जिमा मीन्स इची स्किन, खारिश आएगी, ठीक है ना। उसके बाद मोजी ऑर्डर ऑफ स्किन में ऐसी मोसी जी मतलब कि स्मेल आएगी, ठीक है ना। हेयर एंड यूरिन, मोसी ऑर्डर ऑफ स्किन, हेयर एंड यूरिन ड्यू टू इंक्रीज्ड फिनाइल एलानाइन इन ब्लड एंड यूरिन, ठीक है। तो ये होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। नेक्स्ट डिजीज इज थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया। हाँ, thalassemia is an autosome linked recessive blood disease transmitted from parents to the offsprings when both the partners are unaffected carrier for the gene, that is they are heterozygous. The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, that is alpha and beta chains that make up hemoglobin, ठीक है। This cause the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which is characteristic of the disease, ठीक है। ये हो गया थैलेसीमिया। तो ये जो है जीन रिलेटेड डिसऑर्डर से पड़ी, ठीक है ना, ये वाले। हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हाँ, क्रोमोसोमल एनोमलीज आर डिसऑर्डर्स अराइज इन वेरियस वेज एज नॉन डिसजंक्शन, ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्जन, इनकी वजह से, ठीक है। नॉन डिस्टिंक्शन होता है, इट इज़ एन एरर इन न्यूक्लियर डिवीजन विच इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट फेल टू सेपरेट एंड आर कैरिड टू वन पोल, ठीक है। ये नॉन डिस्टिंक्शन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन में कुछ एरर आता है, ठीक है ना, जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है सेपरेट नहीं होता और एक ही पोल पे चला जाता है, ठीक है, वो नॉन डिस्टिंक्शन। उसकी वजह से हो सकता है या ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, किसी से हो सकता है ये, ठीक है ना। ये टेबल दिया गया है, इसमें ये डिजीज़ दी गई हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आ गया डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। हाँ, इनमें कार्योटाइप कैसे दिखेगा, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम पे होगी, एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी 18 क्रोमोसोम पे, टर्नर सिंड्रोम में 45 और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा, क्लाइनेफेल्टर 47 और XSY आ जाएगा, ठीक है। पहला हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, और इसमें मेन क्लिनिकल फीचर्स ये हैं कि शार्ट और ब्रॉड हैंड्स, डिक्रीज्ड मसल टोन, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रॉड हेड विद करेक्टरिस्टिक फीचर, ओपन माउथ विद लार्ज टंग, ठीक है। तो ये होंगे किसमें, डाउन सिंड्रोम में। हाँ, उसके बाद है एडवर्ड सिंड्रोम होती है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, ठीक है।
हाँ, तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या इसके फीचर्स हैं कि मल्टीपल कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस ऑफ मैनी ऑर्गन्स, रिसीडिंग मैंडिबल, स्मॉल आइज, माउथ एंड नोज, स्मॉल आइज, माउथ एंड नोज, ठीक है। देन सीवियर मेंटल डेफिशिएंसी, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स एंड हार्शू और डबल किडनी, ठीक है, हार्शू और डबल किडनी होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम में। देन टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का कार्योटाइप बन जाता है 45 और एक्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि फीचर ये हैं कि फीमेल विद रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट, यूजली स्टेराइल होती है फीमेल, ठीक है। शॉर्ट स्टैचर होता है, वेबिंग ऑफ स्किन इन नेक रीजन में, ठीक है, वेब होती है स्किन की नेक में, ठीक है। देन कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, तो ये टर्नर सिंड्रोम में होती है, ठीक है, फीमेल में। 45 प्लस एक्स क्रोमोसोम ये अलग, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम प्लस एक्स एंड वाई, ये 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेल इनफर्टाइल विद स्मॉल टेस्टिस में हैव ब्रेस्ट डेवलपमेंट, टाल, माइल्ड मेंटल डेफिशिएंसी, लॉन्ग लिम्स एंड आर एट रिस्क फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में ये कार्योटाइप ऐसा बन जाता है 47 क्रोमोसोम, देन XY, ये सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये मेल में होती है, इनफर्टाइल हो जाता है, स्मॉल टेस्टिस होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होती है, टाल होता है, माइल्ड होता है, मेंटल डेफिशिएंसी होती है, लिम्स जो हैं टांगे और बाजू लंबे लंबे, एंड एट रिस्क फॉर एजुकेशनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये सारी जो हैं ये डिजीज़ हम डिटेल में फोटोग्राफ के साथ देखते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर वाले, ठीक है ना। इनको डिटेल में देखिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर काज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, दीज आर नॉन हेरिटेबल। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हैं दीज आर नॉन heritable. These are of two types: abnormalities due to aneuploidy or and aberration either in autosomes or in sex chromosome, ठीक है। फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में है कि इट इज़ एन ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी, ठीक है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एन्यूप्लाइडी है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ऑटोसोमल एन्यूप्लाइडी, तो इट इज़ कॉल्ड 21 ट्राइसोमी, ठीक है। तो हाँ, तो जिसमें टर्नर ये डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा कि ये जो आई में है, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो कि अप स्लैंटिंग पल्पेब्रल फीचर्स, ठीक है, अप स्लैंटिंग पल्पेब्रल फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लैटन नेसल ब्रिज, ये नेसल ब्रिज बड़ा फ्लैटन है, ठीक है। और ये कान जो हैं ये लो सेट स्मॉल एंड फोल्डेड एयर्स होते हैं ऐसे वाले, ठीक है। और ये जो हैं ये क्या होता है कि ब्रश फील्ड स्पॉट्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे ये आप इसको हमने बड़ा करके दिखाया, ये देखो बीच में ये ब्रश फील्ड स्पॉट दिख रहे हैं आँख में, ठीक है। स्मॉल टिपिकली वाइट स्पॉट्स अरेंज इन रिंग, ये रिंग में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, ब्रश फील्ड स्पॉट, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है एपिकेंथल फोल्ड, ठीक है। ये एपिकेंथल फोल्ड यहाँ पे दिखेगा आपको इस डाउन सिंड्रोम में, ठीक है। ये यहाँ पे कोने में इसको बड़ा करके ये दिखा, ऐसा एपिकेंथल फोल्ड दिखेगा जिसमें अपर आईलिड स्किन फोल्ड कवर द इनर कॉर्नर ऑफ द आई, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे हैं किसमें, डाउन सिंड्रोम के फीचर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम है, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम, हाँ, दिस सिंड्रोम इज ड्यू टू एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 18, ठीक है। इट अकर्स मोर ऑफन इन फीमेल्स देन इन मेल्स, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है 18 में, मतलब ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये होता है ज़्यादातर फीमेल्स में देन इन मेल्स में, ज़्यादातर फीमेल्स में होता है ये, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें जो है ये मोथ इसका देखो, ठीक है, स्मॉल मोथ छोटा सा मुंह होगा, ठीक है ना, स्मॉल जा, ठीक है, जो दांतों का जा भी होगा, क्लेफ्ट लिप जो है क्लेफ्ट होगा, पैलेट एंड शॉर्ट नेक होगा, छोटा सा गर्दन बिल्कुल छोटी सी है ना।
एडवर्ड सिंड्रोम है, एक ये फील्ड है। उसके बाद शील्ड चेस्ट आर शॉर्ट एंड प्रोमिनेंट स्टर्नम एंड वाइड सेट निपल्स, ठीक है, तो ये भी हो सकता है एडवर्ड सिंड्रोम है। देन उसके बाद ये जो सर का है कि ओसीपिट आर बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज प्रोमिनेंट, ये देखो पीछे सर निकला हुआ, ठीक है। उसके बाद कान जो हैं ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है, हाँ, बड़ा करके ये बताया गया कि डिस्प्लास्टिक आर माल फॉर्म्ड एयर्स, ठीक है, कान सही नहीं है, ठीक है, हाँ, ये सारे एडवर्ड सिंड्रोम है। और ये जो हाथ जो हैं क्लेंच्ड हैंड्स विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, फिंगर ओवरलैप कर रही हैं जैसे ये बंद करा, ठीक है ना, क्लेंच्ड हैंड्स है। उसके बाद जो पाँव है ये कैसा है कि फ्लेक्स्ड बिग टो, ठीक है, अंगूठा बड़ा, प्रोमिनेंट हील्स, एड़ियाँ भी बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, तो ये एडवर्ड सिंड्रोम के फीचर हैं। नेक्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जो है इट इज़ ड्यू टू मोनोजोमी, तिहाई क्रोमोसोम की मोनोजोमी मीन्स 2n-1 मोनोजोमी, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ ना 45X, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम it is due to monosomy means 2n-1. It is found by the union of an allosome free egg. It is found by the union of an allosome free egg means 22 plus 0 and a normal X sperm or a normal egg and an allosome free sperm, ठीक है, 22 plus 2. The individual has 45 chromosome instead of 46 की जगह 45 होंगे, ठीक है ना। तो ये होती है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में जो कान है ये क्या है, लोवेस्ट एयर्स, नीचे नीचे कान होंगे। उसके बाद नैरो एंड आर्च प्लेट, ये जो प्लेट है नैरो एंड आर्च होगी। लो हेयर लाइन जो है ये नीचे होगी। और वेब नेक होगा, ये देखो नेक कितना वेब सा बना हुआ है, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम में। उसके बाद ब्रॉड चेस्ट विद वाइडली स्पेस्ड निपल्स, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में। उसके बाद जो है ये आप देख सकते हो कोटेशन ऑफ ओटा होता है ना, जो मतलब कि जैसे दिल का, ठीक है ना, उसका कोर्टेशन ऑफ ओटा जो है ये यहाँ पे दिखेगा। देन बाइकस्पिड आर्टिक वाल्व भी होगा इसके अंदर, ठीक है, बाइकस्पिड आर्टिक वाल्व जो हार्ट में होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्यूबिटस वेल्गस होगा, यहाँ पे क्यूबिटस वेल्गस दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है स्ट्रीक ओवरीज ऐसे होंगी, ठीक है। एमिनोरिया एंड इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है, ओवरी खराब है, इनफर्टिलिटी, ठीक है। शॉर्ट स्टैचर यहाँ पे दिखेंगे। तो ये सारे कौन सा था, टर्नर सिंड्रोम। अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम इट इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स में एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से। जैसे ये आप देख सकते हो क्लाइनेफेल्टर का 47 एंड XXY, ठीक है ना। तो इट इज़ द ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम विच इज़ एक्स, ठीक है। दिस इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ एन एबनॉर्मल XX एग एंड अ नॉर्मल वाई स्पर्म आर a normal X egg and abnormal XY sperm, ठीक है। द इंडिविजुअल हैज़ 47 क्रोमोसोम, ठीक है। तो जैसे ये हमने यहाँ पे देखे थे ज़्यादातर मेल्स में होती है, ठीक है ना, हाँ, क्लाइनेफेल्टर। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आपके स्पार्स फेशियल हेयर यहाँ पे होंगे, स्पार्स फेशियल हेयर, ठीक है, दूर दूर तक, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस्ड मसल टोन, उसकी जैसे ये कंधे हैं, ठीक है ना, उतने पावरफुल नहीं, मसल टोन रिड्यूस्ड है। उसके बाद प्रोमिनेंट ब्रेस्ट होंगे मेल में, ठीक है ना। उसके बाद जो है स्मॉल टेस्टिस होंगे और लॉन्ग लेग्स होंगी, ठीक है। तो ये आ गई क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तो उम्मीद है हमारा ये चैनल वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक्स।